بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، بہت ساری قوم اور قبیلے ہیں، ان کی اپنی سٹوری ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں ساری پیدائش کو یا کیسے وہ کہتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس لیے ہمارا جو بلیو ہے، ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے۔ سائنسدانوں کا بھی اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ شاید مختلف ایٹموں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، وہ اپنا سائنسی طریقہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جی خدا نے کسی چیز کے وسیلہ سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہو۔ ہر ایک کے نظریات علیحدہ ہیں، سوچ علیحدہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا جو بلیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا خالق ہے، ہمارا خدا خالق ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے ساری آیات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا، ساری چیزوں کو بنایا۔ آج ہمیں آسمانوں پر بھی، زمین پر، پتال میں، اور یہ فرشتے، یہ سارے فضائیں، یہ ساری جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا جو خالق ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ کیونکہ جب خدا خالق ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ہمارا یہ بھی بلیو ہے کہ جو خدا ہے یہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ہے سمپل ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور واقعی ہی خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ نیا بھی کرتا ہے، بنا بھی دیتا ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے معجزات بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا بلیو ہے خداوند پر کہ خدا جو ہے یہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ کوئی سینٹ، کوئی ایسا پرافٹ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہر جگہ پر موجود ہے وہ خدا کی حضوری ہے، خدا ہے۔ باقی کوئی انسان بے شک کتنا ہی وہ مقدس کیوں نہ، لیکن وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی بلیو ہے خدا کی ذات پر کہ ہمارا خداوند سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہمارے فیوچر کے بارے میں جانتا ہے، وہ ہماری ہسٹری کے بارے میں جانتا ہے، وہ ہمارے جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہر ایک کے بارے میں جو خدا ہے یہ جانتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے جو پاک ہے، وہ بھلا ہے، اور وہ صادق القول ہے، یعنی کہ یہ ساری سچائیاں ہمارے خداوند میں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم بگننگ کی بات کرتے ہیں، شروعات کی بات کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو شروعات ہے وہاں پر ہم اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پیدائش 1:26 میں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنے صورت اور اپنے شبیہ کی مانند بنائیں۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ آج بھی یہ تینوں اکٹھے کام کرتے ہیں، اور بگننگ میں یہ تینوں اکٹھے ہی، اس بات کو یاد رکھیں۔ یہ صرف کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کئی بار فوکس خداوند کہتے ہیں یا یسوع کہتے ہیں یا روح قدرت کی طرف ہم کام آتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں یہ 1 2 3 نہیں ہے، یہ 1 × 1 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایکول ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح قدرت، یہ ساری چیزیں، یہی ہمارا بلیو ہے، اور ان کے کہنے ہی سے یہ ساری کائنات اور یہ ساری آج جو بھی کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ یہاں پر ان کے کہنے سے بنا ہے۔ اور بالخصوص جب ہم اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور جب بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈسکشن یا جو بحث ہوتی ہے اس آیت پر بحث ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس کے بیچ میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ بہت سارے سالوں کا یہ فرق میرے عزیزو بیان کر سکتے ہیں۔ جب ہم کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دوران کوئی بڑا واقعہ ہوا،
कोई ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से जो जमीन वीरान और सुनसान थी, यानी कि उजाड़पन या बर्बादी हमें जो नजर आती है, जो समझने में से बात चलती है। बहुत सारे जो मुफस्सरीन हैं जो खुदा का कलाम बयान करते हैं, वो ज्यादा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब इब्लीस ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हिजकिय्याह 28 बाब में, यशायाह 14 बाब में, कि बहुत सारे मुफस्सरीन जो ज्यादातर इस बात के लिए मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं कि ये जो गहराओं के ऊपर अंधेरा और तारीकी और डार्कनेस थी, ये बेसिकली जब इब्लीस को इस जमीन पर गिराया गया आसमानों पर से, तो उसने ये सारी बर्बादी की। हालांकि खुदा जो भी चीज बनाता है वो बेहतरीन बनाता है, अच्छी बनाता है। कोई ऐसी अब्बस चीजें खुदा नहीं बनाता है, कोई तबाही वाली चीजें नहीं बनाता है। इसलिए बहुत सारे जो मुफस्सरीन हैं इस बात पर एग्री करते हैं कि खुदा ने अच्छा बनाया, बेहतरीन बनाया। और खास तौर पर अगर हम यशायाह 45 बाब उसकी 18 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद जिसने में आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, और उसी ने उसे कायम किया, और उसने उसे अब्बस पैदा नहीं किया बल्कि इसको आबादी के लिए रास्ता किया, आबादी के लिए रास्ता किया। यानी कि कहने का मतलब यह है, बहुत सारे मुफस्सिरीन इस बात को बयान करते हैं कि खुदा ने सब कुछ बेहतरीन बनाया था। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब बाकी चीजें भी बनाई तो आखिर में खुदा ने हमेशा ये कहा कि बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि खुदा ने बहुत अच्छा बनाया था। और यशायाह 14:16 में भी लिखा है कि ये वो शख्स है जिसने जमीन को रजाया और मलकुतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और इसकी बस्तियां उजाड़ दी। जिसने जहान को वीरान किया और इसकी बस्तियां उजाड़ दी। बहुत सारे मैंने कहा कि जो खुदा के खातबीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो हमें इब्तिदा में ये बात नजर आती है कि जमीन वीरान और सुनसान थी, ये बेसिकली इब्लीस ने सब कुछ तबाही फैलाई जब उसे गिराया गया। उसने जैसे लिखा है कि बस्तियां उजाड़ी, जमीन को तबाह बर्बाद किया। इसलिए मेरे अजीज को याद रखें, हमने पिछले 2 सरमन्स में इस बात को सीखा था कि बुनियादी तौर पर जो हमारा दुश्मन है इब्लीस है। और हमने इस बात को यह भी सीखा कि अय्यूब रास्तबाज शख्स, वो खुदा से डरने वाला था, लेकिन उसका खानदान खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी अपनी सेहत खत्म हो गई, उसको कीड़े पड़ गए और कई सालों तक उसके बदन में कीड़े रहे। उसकी बीवी उसे कहती है खुदा का न शुक्रापन का, नाफरमानी का। और हम ये भी देखते हैं कि उसका सारे जानवर भी चले गए, खत्म हो गया, उसका कारोबार खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका खानदान खत्म हो गया। अय्यूब की अपनी जिंदगी बीमारियों से भर गई और मिसाल ही मिसाल देते हैं। लेकिन उसके पीछे हमने देखा कि ये सब कुछ जो कुछ उसकी जिंदगी में और खानदान में आया, उसके पीछे इब्लीस। सम टाइम इब्लीस भी हमारी जिंदगी में वीरानगी लाता है, बर्बादी लाता है, तारीकी लाता है, मसाइल लाता है। इसलिए हमने अपने दुश्मन को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। कई बार चर्च की ये प्रॉब्लम है कि हम अपने दुश्मन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं, हमारा दुश्मन कोई मिशन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है, इस बात को याद रखें कि वो इब्लीस है, क्योंकि वो खुदा के लोगों का दुश्मन है। वो खुदा की हर चीज, बनाई हुई चीज को तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और आज भी वो ईमानदारों की जिंदगी में तारीकी लाता है, मायूसी लाता है, नाउमीदी लाता है, मसाइल लाता है। फिर आखिर में हम ये भी कह सकते हैं कि हिल जाने ने सारे, ठीक है, सारे बाकी हिल जाते हैं। इब्लीस का ये तरीकाकार है कि वो हमारे बच्चों को बर्बाद करे, हमारे अज़वाजी बंधों को बर्बाद करे। इसलिए मेरे अजीजों, एक तो ज्यादातर खास तौर पे हिजकिय्याह 28 बाब उसके 11 से 19 आयत पे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि इसको हुस्न में कामल भी कहा गया है, इसको ममसूक कुरूबी भी कहा गया है। तो ये वर्शिप को लीड करता था। आप ये कह लें कि ये एक तरह से खुदा का राइट हैंड था, लेकिन इसके अंदर घमंड छाया, इसके अंदर गुरूर आया
तकब्बर आया। और बहुत सारे आज भी जब हम किसी चीज पर गरूर करते हैं, तकब्बर करते हैं, अपने किसी भी टैलेंट पर, किसी भी चीज पर हम गरूर करते हैं, तो उसके बाद हमारी जो तबाही है शुरू हो जाती है। खुदा ने इब्लीस को बनाया नहीं था, खुदा ने इसे बेहतरीन फरिश्ता बनाया था, जिसके बारे में बहुत कुछ खुदा के कलाम में इसकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन जब इसके अंदर घमंड आया तो वही शैतान हम देखते हैं कि इब्लीस बन गया, और फिर इसने अपने 7 फरिश्तों को मिलाया, और फिर ये नीचे गिराए गए। और जब ये नीचे गिराए गए तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जितनी हमें तरीकी बर्बादी उस वक्त नजर आती है, ये इब्लीस ने पैदा कर दी थी। ज्यादातर लोग इसी के हामी हैं। और अगर ज़बूर 104 पढ़ें और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ज़बूर 104 उसकी 5वीं आयत, तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था और तेरी झिड़की से भागा, और तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ ऊपर आए, वादियां बैठ गईं, और तूने हद बंदी दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके, और फिर लौटकर जमीन को ना छुपाए। एक नजरिया यह भी है कुछ लोगों का, मैंने पहले भी बताया, कुछ का यह ख्याल था कि जमीन पहले थी और इसके ऊपर पानी था। जमीन पहले थी, इसके ऊपर पानी था, इस रेफरेंस के मुताबिक। लेकिन जब खुदा ने इन सारी चीजों को फॉर्म किया, इन चीजों को बनाया, तो पानी जो है हम देखते हैं कि जुदा हो गया, और फिर जो जमीन है ये अपनी असल सूरत में ये सामने आगे, जैसा कि सारे रेफरेंस में लिखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मुतफिक हो, और भी चीजें हो सकती हैं इसमें, लेकिन जो समझ आए। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इस बात के हक में हूं कि वाकई ही इब्लीस ने तबाही बर्बादी की है, क्योंकि लिखा है कि उसने बस्तियां उजाड़ दी। क्योंकि उसका काम है, चोर नहीं आता मगर चराने, मार डालने और हलाक करने का। जब आपको हमने लास्ट सर्वे में भी सुना कि जब हम स्पिरिचुअल फाइट के लिए, रूहानी जंग के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे पास और कुछ ज्यादा जो हमारे पास पावरफुल वेपन है, स्पिरिचुअल वेपन है, वो हमारे पास है। इस बात को याद रखें, खुदा का कलाम है और हमारी दुआ है। जब हम दुआएं करते और कलाम बोलते हैं, जैसे हम गवाही में सुन रहे थे कि मैंने कलाम बोलना शुरू कर दिया, तो इसलिए हमारे पास ये बेहतरीन वेपन है। हम जिस्म में इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कलाम हमारी जिंदगी में है तो हम मेरे अजीजों से बात में खड़े रह सकते हैं और इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। यहां पर इन द बिगिनिंग हमें खुदा भी काम करता नजर आता है, और फिर लिखा है खुदा के मुंह से जो कुछ निकलता वो कलाम है। और कलाम के बारे में हम इस बात को पढ़ते हैं। अगर यूहन्ना की अंजील पढ़कर देखें तो उसके पहले बाब में इस बात को लिखा गया है। अगर पढ़कर देखें यूहन्ना की अंजील में, इब्तिदा में, और कलाम खुदा के, और कलाम यही इब्तिदा में, और सब चीजें इसी के वसीला से, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों के नूर थी, और नूर तरीके में चमकता है और तरीके ने उसे कबूल ना किया। यानी कि यहाँ पर जिस बात को बयान किया गया है कलाम के बारे में, यानी पहली बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इब्तिदा में, बिगिनिंग में खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस को हम काम करते हुए देखते हैं। और आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है मेरे जिंदगी। यहां पर इस बात को मैं बयान करना चाहता हूं कि बहुत सारे मसाइल और प्रॉब्लम इस वजह से हमारी जिंदगी में जन्म लेते हैं कि जब कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होता है। कई बार हमारा बहुत ज्यादा भरोसा हमारी अपनी दुआ पर होता है। दुआ बहुत जरूरी है, ये ईमानदार की सांस है, लेकिन इस बात को याद रखें उससे बढ़कर खुदा का कलाम है।
कलाम उससे बढ़कर है। कलाम ही के वसीला से हमारी जिंदगी में तख्लीकी काम होते हैं। कलाम ही के वसीला से खुदा ने सारी कायनात को बनाया है। और कलाम कौन है? यीशु मसीह। इसलिए कलाम को खूब पढ़ा करें। इसको नहीं पढ़ सकते, इसकी ऐप है, मोबाइल पर लगा कर सुने। अपने घर में खुदा के कलाम को बिखेरा करें। अपने घर को टीवी चैनल बनाया करें। अपने बदन को टीवी चैनल बनाए। कुछ नहीं कर सकते, चंद आयात याद कर रहे हैं, वही आयात आपको जिंदगी में बरकत देंगे। आपके खानदान को, आपके हालात को वो तब्दील कर देंगे। इससे जितना जल्दी बाकी सारी चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अगर कोई अब तक कायम रहेगा तो वो वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का कलाम है, जो हमेशा कायम रहेगा। और यहां भी जब खुदा ने क्रिएशन का काम किया तो खुदा कहता तो चीजें हो जाती है। खुदा कहता तो चीजें हो जाती हैं। इस बात को याद रखें कि जब खुदा कलाम करता है तो कुछ होता है। और कलाम यीशु मसीह है, जिसके कहने से ये सब कुछ बनता है, जिसके वसीला से ये सारी चीजें बनी हैं। इस कलाम में जिंदगी है, इस कलाम में कुव्वत है और इस कलाम में कुदरत पाई जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल मौका दे। और यहां पर लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। खुदा ने कहा, खुदा के मुंह से कलाम निकला और वो कलाम यीशु मसीह है। आज भी कई बार हमारी जिंदगी में डिप्रेशन होते हैं, मायूसियां होती हैं, डार्कनेस होती है, तारीकी होती है। हमें सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हमें नजर नहीं आ रहा होता है कि हम कुछ कर पाएंगे, हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, क्या हमारे बच्चों की शादियां होंगी, क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या हमें ये बरकत मिलेगी। हमें तरीकी नजर आती है। अब इब्लीस चूंकि तरीकी है, वो तरीके में काम करता है, तारीकी में हमला करता है, इसलिए वो हमारे गिर्द भी तारीकी लाता है। हमेशा हमें भी वो अंधेरे में रखता है, बीमारियों के अंधेरे में रखता है, मुश्किलात के अंधेरे में रखता है, बीमारियां और मसाइल के अंधेरे में रखता है। हमारे इर्द गिर्द वो रोशनी कलाम की होड़े नहीं देता है, उस कलाम को हमारी जिंदगी में आने नहीं देता, उस कलाम को हमारी जिंदगी से उठा लेता है, उस कलाम को हमारे पास रहने नहीं देता। और यही याद है आप कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज का भी कलाम शाम तक भूल जाएंगे। मेजॉरिटी लोग कलाम सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर अब बैठे हैं तो उनको उनके अंदर नहीं होता, जज़ब नहीं होता। टेम्परेरी चीजें हो रही होती हैं, वो जो जमीन झाड़ियों वाली होती है या पथरीली जमीन होती है। बहुत सारे लोग कम हैं, इसलिए हम देखते हैं कि यीशु से कहा गया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर तूने कामयाब होना है, अगर तूने दूसरे कौमों पर, मुल्कों पर फतह पानी है, तो कलाम को अपनी जिंदगी में ले ले। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए बाहर के दरवाजे खोले, स्टूडेंट के दरवाजे खोले, वर्क दरवाजे खोले, इमिग्रेशन के दरवाजे खोले, घरों के दरवाजे खोले, प्रोविजन के दरवाजे खोले, सेहत के दरवाजे खोले, तंदुरुस्ती के दरवाजे खोले, तो वर्ड ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी में बोले, एप्लीकेबल करे, उससे रीड करे, उसे हजम करे, उसकी जगहाली करे और उसको अपनी जिंदगी में मौका दे। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो बहुत सारे बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इस बात को याद रखें कि तरीकी कितनी ही गहरी क्यों ना हो, कितनी ही तारीकी गहरी क्यों ना हो, लेकिन जब कलाम आ जाता है तो रोशनी हो जाती है। हालेलुया! जब कलाम आ जाता है तो रोशनी हो जाती है। अब कितने ही मायूसियों में क्यों ना गिर गए हों, अब कितने ही परेशान क्यों ना हों, अब कितने ही बीमारी का, डिप्रेशन का शिकार क्यों ना हो गए हों, इस बात को याद रखें। ये बज़ाहिर ये बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये टेंशन, ये बेसिकली इब्लीस हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, वो हमारी सोचों को डिस्टर्ब करता है। जब उसने हमारी सोचों को डिस्टर्ब कर लिया तो सारी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन जब हमारा माइंड जब खाली होता है, जब इसमें कलाम नहीं होता, तो उसे आसान होता है हमारे अंदर दाखिल होना। जब उसने इब्लीस ने अय्यूब का विजिट किया तो पहली बार वो नहीं जा सका, उसके घर में नहीं दाखिल हो सका। उसे जाकर खुदा से कहा, खुदावंद उसके गिर तो बाढ़ लगी है, कैसे मैं अंदर जाऊं? उसको रास्ता नहीं दिया अय्यूब और उसके खानदान ने।
کوئی وے نہیں تھا کہ جس سے وہ داخل ہو. لیکن جب کیونکہ خدا کی بات اس کے چاروں طرف تھے، لیکن جب ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے تو ہماری ساری زندگی اوپن ہوتی ہے ابلیس کے لیے. وہ ساری زندگی اس نے پھر تباہ ہی کر رہا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ کلام کو درجہ دیں اور کلام کو بولے. اور اس بات کو یاد رکھے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ اس کے کلام میں شفا. بے شک ہم دعائیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم سب کو دعائیں کرنی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور وہ یسوع مسیح. ہاللویا. اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، تخلیق میں بھی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اور اس کے بعد ہم نے ان دا بگننگ دیکھا کہ طریقی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے. صرف چھوٹی سی لائن کہ روشنی ہو جا، اور لکھا ہے کہ روشنی ہوگی. سو پہلا دن دا نیو بگننگ، نئی شروعات ہوگی. صرف ایک لفظ جب خدا کہتا ہے، ایک ہی لفظ کی صحیح سمجھ آ جانا، ایک ہی لفظ کا صحیح مقاشہ مل جانا، تو وہ لفظ بہت سارے لوگوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنی زندگیاں تبدیل کی. صرف ایک لائن سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. کئی بار لوگ کنونشن پر نہیں جاتے تھے، لیکن جب کنونشن پر گئے ہیں، ایک لائن نے انہیں تبدیل کر دیا. خدا کے ایک ایک ورڈ میں قدرت پائی جاتی ہے. جب خدا کہتا ہے تو پھر طریقی، مایوسی اور بیماری ہمارے اندر نہیں رہتی ہے، پھر ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی ہے. جن کے بیچ میں یسوع نہیں ہے، جن کے بیچ میں کلام نہیں ہے، جن کی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، وہ آج بھی طریقی میں ہیں، آج بھی ڈارکنس ان کی زندگی میں ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ روشن رکھے گا. اس کی قدرت ہمیشہ آپ کو میرے عزیزوں روشن رکھے گی.